the globe for the 11th edition of Chandigarh Literati. We have with us here Dr. Sumita Mishra, the chairperson of Chandigarh Literary Society, as well as the festival director and curator for Literati. Ma'am will give the briefing about the festival. Are we all set? Thank you. Hello. Okay, voice is fine. Good morning, friends. And firstly, आप सबका हार्दिक आभार जो you took out the time to be here. जो हमें चंडीगढ़ के और रीजनल और इस एरिया के मीडिया से सपोर्ट मिला है लिटरेटी के लिए, आज से नहीं शुरू से वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए भी encouragement और motivation का source रहा है. So इसलिए at the outset I would like to thank all of you and I hope कि आगे भी हमें इसी तरह से CLS चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी और लिटरेटी की सभी एक्टिविटीज़ के लिए आपका हार्दिक और पुरजोर सपोर्ट मिलता रहेगा. ये लिटरेटी का 11वां साल है. 11 years is a long time. We are one of India's oldest literature festivals, and this year also we have tried to curate something new, something exciting like every year. We have more than 22 sessions lined up for this year's Literati, more than 50 speakers, and as always ये एक unique बात है Literati की. और आज से नहीं शुरू से हमारे पहले शायद जयपुर लिट फेस्ट ही था शायद देश में, अब तो हर जगह हर छोटे शहर की भी अपने लिटरेचर फेस्ट हैं, कि शुरू से हम इस सोच के साथ चले कि ये फेस्टिवल चंडीगढ़ की एक मॉडर्न वाइब्रेंट स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए. ये फेस्टिवल एक प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए और ये फेस्टिवल एक ट्राइलिंगुअल फेस्टिवल हो, क्योंकि इन चंडीगढ़ ऑल्सो वी हैव Punjabi, we have Hindi, we have Urdu and we have English. So from the start we have made the effort to showcase all of these languages and literature in Literati Chandigarh International Lit Fest. In fact this year also हमारे 3 हिंदी के सेशंस हैं, 3 पंजाबी के सेशंस हैं और एक उर्दू का सेशन भी है. Talking about इस साल की लिटरेटी का थीम क्या है. इस साल की लिटरेटी का थीम बहुत ब्रॉड है, क्योंकि हमारा सोचना ये है कि साहित्य को और सोच को कभी भी सीमित नहीं करना चाहिए. The theme is Navras. Navras forms the basis of all human emotion, all human experience and of the human narrative if we can say. जो 9 रस हैं आप लोग सब familiar ही हैं उनसे, फिर भी I would like to just recap the 9 रस that we hope the literature festival will explore. श्रृंगार रस है, यानी दिस लव, हास्य, और हम इनफैक्ट लिटरेटी की शुरुआत ही हास्य रस से कर रहे हैं. 24 तारीख को शाम के 5 बजे ऑनवर्ड्स टैगोर थिएटर पे गौरव गुप्ता जी, जो आज के दिन शायद भारत के सबसे पॉपुलर स्टैंड अप कॉमिक हैं, उनका शो है एट टैगोर, एंड उसके साथ एक सूफी म्यूज़िक परफॉर्मेंस भी है. सो शुरुआत हास्य रस से ही हो रही है. बाकी रस का मैं बस जिक्र कर रही हूँ. करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, भीभत्स, अद्भुत और शांत. तो आशा है कि ये सारे 9 रस अलग अलग रूप में अलग अलग ऑथर्स और अलग अलग डिस्कशंस के माध्यम से इस फेस्टिवल में उजागर होंगे. द टैगलाइन फॉर आवर फेस्टिवल दिस ईयर इज पार्ट ऑफ दिस थिंकिंग दैट आई एम शेयरिंग विथ यू, दैट we need platforms where ideas can be discussed openly, where there is a free and frank exchange, where there is unfettered expressing of opinions, and opinions that express the diversity and plurality of our society and of the world today. So the tagline for Literati this year is Converse, Connect, Create. Talking about some of the sessions which I've already shared, that we'll start on 24th with the Gaurav Gupta show. We will be releasing the session schedule और आपके हम किट में भी session schedule है मौजूद, और उसको हम email के माध्यम से भी we'll be sharing it everywhere. I will just quickly walk through the session schedule so that कुछ जो highlights हैं वो साझा कर सकूँ मैं. We start the keynote address on day 1 is the धर्म ऑफ अ राइटर. ये अश्विन सांघी जो भारत के सबसे पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से हैं, वो ये कीनोट एड्रेस डिलीवर कर रहे हैं.
उसके बाद we have a session with the international star कबीर बेदी. उन्होंने एक बहुत ही रोचक किताब लिखी है, Stories I Must Tell, and that is his autobiography. He will be talking about that, and he is somebody who has been from Bollywood to Hollywood and been a pan-European star with his Italian series Sandokan. After that, we have a deep and profound discussion on Mahatma and Gurudev. That is on Bapu and Tagore, unki influence and confluence of their thought on modern Indian thought. This will be Professor Pramath Raj Sinha and Professor Rudrangshu Mukherjee, both stellar academics of modern India, and they will be talking about this whole theme and their books which are centered on this theme. Next, we have a state of stories. This is about modern writing in Punjabi and Punjabi stories and translation of Punjabi stories into other languages. Balbir Madhopuri, जो एक self-made person भी हैं और एक दलित writer भी हैं वो, and Professor Renuka Singh of JNU, they will be talking about this the stories of Punjab and Punjabiyat right after that. Then, as always, we have on both days book launches and which we call Books in Focus, that segment. We have then a book launch of a Hindi magazine, Abhas, by Rivers Publishing, and book cover release and a book launch. The details are in the session schedule. Then we come to something that we have added specially this year. हर साल हमें यहाँ के यूथ, कॉलेजेस, स्कूल चिल्ड्रन से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है. इस बारी भी हमने कॉलेजेस को इनवाइट किया है, बट मेरा ये मानना है कि हमें यूथ को कनेक्ट करने के लिए हमें नए फॉर्मेट्स या नए जो उनके लिए पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं उनको भी मेन स्ट्रीम करना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल परफॉर्म्ड पोइट्री या जो हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे पोइट्री इज़ सो पॉपुलर. सो वी हैव टू वेरी ब्राइट एंड अपकमिंग एंड वेल नोन performed poetry sessions on day 1 as well as day 2. We are calling it the spoken word. On day 1 we have performed poetry by Roop Kaur Konar, and day 2 it is by Paridhi Kalotra Agarwal. So this is something that we are targeting mainly for the youth. ये दोनों ही हिंदी पंजाबी मिक्स में परफॉर्म करेंगे अपनी पोइट्री. तो इसका एक जो मैंने भी उनके इंस्टाग्राम पे देखा है, they're brilliant. I think people will enjoy that. Our next session is Guts, Grit and Glory. Meera Chadda Borwankar, जो मुंबई की पुलिस कमिश्नर रही हैं, the first and only female police commissioner. Her latest book is called Madam Commissioner, and she, along with Rajesh Pandey and Rakesh Goswami. Rajesh Pandey जी यूपी कार्डर के पुलिस ऑफिसर थे. ऑपरेशन बजूका जो श्री प्रकाश शुक्ला जो बहुत बड़े गैंगस्टर और माफिया एक टाइम में यूपी में थे, उनको हंट डाउन करने का ऑपरेशन, उन्होंने ये किताब राकेश गोस्वामी के साथ लिखी है. एंड इनफैक्ट पांडे जी was instrumental way back in 1998 in setting up the UP Special Task Force, Anti-Crime Force. So we'll get to hear about the real side of policing. हॉलीवुड या बॉलीवुड इसको एक बहुत ग्लैमरस ढंग से दिखाता है, जबकि रियलिटी शायद इससे कहीं ज़्यादा हार्श है. और ये हमारे ऐसे कुछ ऑफिसर्स हैं जो वो शेयर करेंगे थ्रू द बुक्स दे हैव ऑलरेडी रिटन. अगला सेशन इज़ अगेन पंजाबी, जिसमें लखविंदर जोहल साहब, मनमोहन सिंह जी जो रिटायर्ड IPS हैं और साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर हैं, और बब्बू तीर जी जो एक पॉपुलर कॉलमिस्ट भी रही हैं, ये बात करेंगे पंजाब दे साफिया. तो मेरी पंजाबी बहुत ख़राब है, तो अगर गलत बोल रही हूँ तो माफ़ करिएगा. ठीक बोला? हाँ मैम ठीक बोला. ओके. सो एंड इसके बाद इस सेशन है, आजकल अलग अलग मीडियम से में बहुत अच्छी राइटिंग हो रही है. OTT फॉर एग्जांपल, जो प्री कोविड OTT नॉन एग्जिस्टेंट था ऑलमोस्ट, और अब सबसे ज़्यादा आई थिंक मॉडर्न एंड इंसाइटफुल राइटिंग OTT कंटेंट में हो रही है. सिमिलरली थिएटर इज अनदर फॉर्म. देन we have the conventional novel. So 3 different streams say well-known faces. Meghna Pant, who's a very brilliant young novelist and a feminist, और अश्विनी अय्यर तिवारी जो
बरेली की बर्फी हो या जो तरला दलाल शो हो या नीलबटा सन्नाटा, इनके पीछे डायरेक्टर एंड राइटर दोनों हैं. शी इज़ अनदर ब्रिलियंट यंग वुमन. एंड महेश दत्तानी साहब जो इंग्लिश प्ले राइट हैं, भारत के साहित्य अकादमी सबसे पहले इंग्लिश थिएटर के लिए उन्हें मिला था 1998 में, if I'm not mistaken. So he is coming specially, and this session is called "Medium is the Message." That whatever medium you take, what are we writing and what are we saying to the public? Sumant Batra is. And Sumant, no, he's the moderator. We're not discussing moderators. अगला सेशन इज अगेन एन इंटरेस्टिंग सेशन जिसमें हम भारत, हम उसका नाम हमने रखा है नवरस, भारत के रास रंग. तो चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो हमारी गंगा जमुना तहजीब हो, ये सब आज के परिवेश में हम उन्हें कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, और उनके इसमें आगे के लिए हमारी क्या मैसेज है या क्या राह हो सकती है. इसमें हमारे पास मंजरी चतुर्वेदी जी हैं जिन्होंने तवायफ ऑफ लखनऊ, वो एक सूफी कथक डांस फॉर्म की उन्होंने इनफैक्ट संरचना करी है. उनके साथ होंगे पंडित अभय रुस्तम सपोरी जो एक यंगेस्ट संतूर प्लेयर हैं, अवार्ड विनर हैं. उन्होंने कई मूवीज़ में भी म्यूज़िक दिया है और उस म्यूज़िक के ज़रिए उन्होंने कश्मीर की जो एक तहजीब एंड द रियल म्यूजिक ऑफ कश्मीर ही हैज़ हाईलाइटेड. उन्होंने एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट भी संतूर नहीं, वो सुर संतूर एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने इन्वेंट किया है. या एंड ही हैज़ गिवन म्यूजिक फॉर फिल्म्स, कॉम्पोजिशंस ऑफ फिल्म्स लाइक शिकारा एंड द वेब सीरीज तनाव, और एक 30 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सुर संतूर उन्होंने बनाया है. सो ही इज़ अ यंग एंड एन एक्सेप्शनल टैलेंट. They will be in conversation and Mr. Afan Yasvi, who is also a Sufi thinker himself. They will be in conversation on all these aspects. And then उस दिन शाम को एक और यूनिक चीज़ हम ला रहे हैं कॉल्ड दास्तान राम. दास्तान गोई एक 16वीं सदी की ओरल स्टोरी टेलिंग की आर्ट है. भारत की जो इकलौती महिला दास्तान गो है फौजिया दास्तान गो, वो और रितेश यादव दानिश इकबाल जी की लिखी हुई रचना प्रस्तुत करेंगे जो रामायण पे आधारित है, जिसका नाम है दास्तान राम. तो ये एक मैं समझती हूँ एक नई और यूनिक चीज़ होगी, और जो हमारी एक मिली जुली साझा विरासत है उसको भी ये एक अनुपम रूप से दर्शाएगी, झलकाएगी. डे 2 में वी स्टार्ट विद द हिंदी सेशन. 2 बहुत ही दिग्गज हिंदी साहित्यकार हमारे साथ होंगे, ममता कालिया जी एंड ज्ञान प्रकाश विवेक जी. दोनों ने ही कई सम्मान प्राप्त किए हैं, कई किताबें लिखी हैं, और ज्ञान प्रकाश जी की लेटेस्ट किताब व्हील चेयर आधुनिक हिंदी साहित्य में एक बहुत उसने अलग जगह बनाई है. तो वो समकालीन कहानी हिंदी साहित्य, हिंदी नॉवल के बारे में बात करेंगे. इस सेशन का नाम है कहानी और कहानीकार. उसके बाद एक और हिंदी सेशन है जिसमें माधव कौशिक जी जो हमारे ट्राई सिटी के ही मैं कहूँगी कि सबसे लीडिंग लाइट हैं पोइट्री में, और राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी हैं, जो चंडीगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर भी है. वो शुरू से ही चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के साथ भी बहुत नज़दीक से जुड़े रहे हैं. वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन भी थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे. और माधव जी और मुझे भी कहा गया कि मैं भी उस सेशन में उनका साथ दूं. तो हम दोनों अभिव्यक्ति नाम का ये सेशन है. हम अपनी कविता और उसकी क्रिएटिव प्रोसेस और कुछ कविताएं साझा भी करेंगे. उसका अगला सेशन गीतांजलि श्री जो बुकर प्राइज़ अवॉर्डी हैं रेत समाधि के लिए, जो उनकी ट्रांसलेशन को वो पहली बार चंडीगढ़ आ रही हैं. एंड मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं पर्सनली बहुत आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू हर, क्योंकि उनकी लेखन शैली भी बिल्कुल अलग रही है. वेरी इनोवेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड अ वेरी innovative use of the whole way she has approached the writing. उसके बाद we have none other than Chef हरपाल सिंह सोखी, टर्बन तड़का नमक शमक. उनका एक सेशन है along with another young chef जो हमारी culinary history के बारे में भी लिखते हैं, सदाफ हुसैन, शेफ सदाफ हुसैन. ये सेशन है गैस्ट्रोनामा तड़का टेल्स. Then we have some book launches.
And after that we have the spoken word again, which I mentioned with Paridhi Agarwal. उसके बाद हमारा पंजाबी सेशन है with Harf Cheema and Amitoj Maan, both very big names in Punjabi cinema, Punjabi music. और उसके बाद we have a session जो मैं समझती हूँ कि हर कोई जो एक budding author है या writer है वो जानना चाहेगा, the book business. सिर्फ क्रिएटिविटी या लिख लेना काफ़ी नहीं है, आज का ज़माना PR का ज़माना है, मार्केटिंग का ज़माना है, and books have to sell at the end of the day. So we have a famous book agent Lipika Bhushan moderating this session with Meghna Pant and Shantanu Ray Chaudhary, जो इंडिया के one of the most successful book editors रहे हैं और उनको इसके लिए awards भी मिले हैं. And he has been chief editor at Penguin at HarperCollins, and now he is heading Om Books. We end with the Power of Idols. ये है अमीश त्रिपाठी जी and भावना रॉय की latest book. It is the second book of the धर्म series, Decoding धर्म उन्होंने release की थी last year. और ये non fiction है और इस पे उन्होंने भारत की जो बहुत पुरानी विरासत है, जो हमारी दर्शन है, जो हमारी मूर्ति पूजा की रिवायतें हैं, उन सब पे एक मॉडर्न उसका इंटरप्रिटेशन भी दिया है और इस फॉर्म में लिखा है कि सबको समझ आ सके. सो एंड वी एंड विद दैट. सो दैट इज लिटरेटी जो हमारा 2.5 days चलेगा. वी आर ट्राइंग एज ऑलवेज कि द पीपल ऑफ चंडीगढ़ गेट a new experience, an exciting experience. We've contacted colleges because as always we want young people to join, to be part of literature, to be part of the world of ideas. And I would especially like to thank our sponsors, the Government of Haryana, the Chandigarh administration, and we have many other non-government sponsors as well. Ashoka University, Vodafone, Chandigarh Sahitya Academy, Hayat, Red FM, Rivers Publishing, Vedika, our hydration partner, Events in Bites, Patari Studios, Rangai Studio, and we will be acknowledging them. I'm acknowledging them today, but all through the fest for their generous and gracious support. आप लोग से फिर वही अपील है कि आप इसको मैक्सिमम कवरेज दीजिए, लोगों को पता चले. सारा इवेंट फ्री है. इसमें हमारी बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत से हम कोशिश करते हैं. फॉर अस इट इज़ अ लेबर ऑफ लव. इट इज़ प्योरली सेल्फलेस, निस्वार्थ सेवा कह सकते हैं कि लोगों को ये एक चीज़ पहुँचे, ये वेल नोन ऑथर्स, राइटर्स हमारे बीच आएँ. सो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है फॉर द पब्लिसिटी, फॉर द कवरेज, एंड ऑफ कोर्स अ वेरी वार्म इनवाइट टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो टू पर्सनली बी देयर ऑल थ्रू द फेस्ट. And we will be happy to accommodate and support you in whatever way that is required. Thank you. कोई सवाल? Any questions from media? Ma'am, we are getting a disconnect. Our students are getting disconnect from literature. So how do you see that this kind of festivity is important for mental health? Actually, मुझे नहीं लगता कि it is a disconnect. मुझे ये लगता है कि शायद हम we need to innovate and find new ways to connect to them. So for that, and that, as I mentioned, that's why we've gotten two very young poets who do the perform poetry जो आज के youth को connect करती है. आजकल ये माइक्रो फिक्शन, अटेंशन स्पैन कम हो गया है यूथ का. तो फर्स्ट थिंग इज़ कि उस अटेंशन स्पैन को हमने दोबारा ग्रैब करना है. Where we get young people talking to young people. That's one thing. The second thing is that by getting these famous names, यूथ में ये भी होता है कि कोई चीज़ अगर आपको स्पार्क कर गई, हिट कर गई, क्लिक कर गई, तो फिर आप उसको जुनून भी बना सकते हो. और मुझे तो लगता है कि आज के यूथ हमारे टाइम से कहीं ज़्यादा लिख रहे हैं. They are writing more and they are finding new ways to publish it. You find Insta pages of young people. हम लोग तो किताबों तक सीमित है, वहाँ पे there are lakhs of followers. All young followers, they are doing new things, they are trying new combinations of poetry. और यहाँ तक यूथ को रीच करने की बात है, हम हर साल कॉलेजेस को इन्वॉल्व करते हैं, इस साल भी किया है.
एंड मुझे उम्मीद है कि यूथ काफ़ी भारी मात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे लिटरेटी में भी। You've taken a lot of names which are very famous and we are aware of them in the arts, basically in dance and music. Musicians you've already named. Why don't you connect to the school kids as well, because they are the major disconnect, because till the time of school, I mean for the colleges, yes, they are already aware of, but schools are majorly disconnected. आपका अच्छा सुझाव है, but we do events through the whole year which specifically target school children, creative writing workshops, short storytelling competition, poetry competition. Literati is our premier lit fest. It is Chandigarh's lit fest. It is for everyone. We, right? And you would remember कि रस्किन बॉन्ड साहब को जब बुलाया था तो वहाँ पे मतलब स्कूल किड्स का भरमार थी, मतलब खड़े होने की जगह नहीं थी. So this is for everyone. There is something for everyone. This is the good thing. Thank you. जी. समय के जो लेखक थे कवि आज भी हम याद करते हैं प्रेमचंद की कहानी तो अब हमारे बीच में जयशंकर प्रसाद तो है नहीं, प्रेमचंद नहीं है, तो हमारे लिए नए रूप में प्रेमचंद जयशंकर जी या कैसे पैदा हुए इसके लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नई नई किताबें लास्ट क्वेश्चन देखिए ये सारी चीज़ उसी के और प्रयास है. जैसा मैंने कहा कि साहित्य एक आइडियाज़ की दुनिया है, और कौन सा आइडिया, और आइडियाज़ ज़रूरी नहीं कि मेरे पास या आपके पास हो. When we interact in a creative environment, we spark inspiration in each other. तो ये जो, और CLS सिर्फ एक लिटरेटी लिटफेस्ट नहीं करता है. हम साल भर हम नए ऑथर्स, न्यू राइटिंग, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, हर एक स्तर पे वी रीच आउट एंड डू लिटरेरी एक्टिविटीज़. मैं समझती हूँ कि there must be more than a dozen writers in Chandigarh alone जो सिर्फ चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के सपोर्ट एंड encouragement से आज published authors हैं. So it is a constant process. दूसरी बात, ये 2 points और मैं कहूँगी कि जयशंकर प्रसाद जी या मैथिली शरण गुप्त की वैल्यू भी हमें समय गुजरने के बाद पता चलती है. विंसेंट वैन गो जो आज के सबसे हाईएस्ट सेलिंग, उनकी पेंटिंग इज द कॉस्टलीस्ट पेंटिंग एवर सोल्ड, नेवर सोल्ड अ सिंगल पेंटिंग इन हिज लाइफ. ही गिफ्टेड वन टू हिज लैंडलेडी, दैट वाज इट. So the value of art is often known in retrospect or after the passage of time when we see, yes, this was a gem. So let us hope, अगर हमारे आज के दिग्गज अश्विन सांघी जी हैं या अमीश त्रिपाठी हैं या शशि थरूर हैं, they are all brilliant writers. Maybe their true worth will be known in the coming decades. Maybe somebody new and young today. Some of the best authors have had their works published when they were very young. Salman Rushdie की first book is still his defining book, Midnight's Children. So we need the element of time to understand the true value of art at times. And thirdly, ये downside भी है कि now it is so easy to publish कि चीज़ में मेरिट हो या ना हो, आप पब्लिश्ड ऑथर बन सकते हो. So वो भी बात है. ठीक है. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.